revision. So yesterday we studied about sampling, and we compared with 100% inspection, plus and minus things about sampling, plus and minus about 100% inspection that we studied. About acceptance sampling, why it is necessary that we had a look. Then one good example of these pomegranates, fruits, or apples that we studied. How out of many crates we select one crate, and randomly we select one crate, and we check all the items, and out of that certain pieces are defective, or less than that, then we accept that, or if it is more than a rejection number, then we reject the entire lot, not only that particular bucket or crate, but entire lot. That also we studied. That was about sampling section. Taken at random. So plans are sometimes only in we can't check that. We give second chance, because sometimes what happens, by chance we get bad lot only. That's why we give second chance to the entire lot, and but that time we are strict for acceptance number. How we are strict, that again we will see. um, so that acceptance sampling, one more example, we saw eggs, etc. So whenever you check the eggs for germs and other thing, because it is a destructive test, you can't do it for all, otherwise you will have nothing to sell. So some samples only we have to take. Similarly, you have to see the fruit taste and other thing is a destructive test. You have to cut that fruit, so that sampling is inevitable. So single sampling plan is easier. Out of the lot of 1,000, let us say capital N is 1,000 pieces. So we will take a sample of 50. N, small n is 50. And now if C is a cutoff point, that is C is a space, there is one acceptance number, we can call it by A or C, that we call, and rejection number R. So that will be better. Acceptance number A or C, and rejection number R. So in single sampling plan, what happens? There is a difference of only one in rejection number and acceptance number. This clear-cut deviation. For example, out of sample, means a lot of capital N, that is 1,000 pieces, you have taken a random sample of 50 from various places. Out of those 50, if C is the acceptance number, that is 2, means out of 50, if 0, 1 or 2 are defective, then we will accept the lot. Otherwise, after 2, immediately there is a next number 3. 3 onwards, 3 or 3 onwards, we have we will reject the lot. If defectives are 3 or more than 3, we will reject the lot. If the defectives are 0, 1, 2, then we will accept the lot. Okay, it is clear cut single sampling plan. एक ही sample में हमारे lot का हम भविष्य decide करेंगे कि इसको accept करना है या reject करना है. Sometimes people think that we should give him another chance, क्योंकि हो सकता है कि by chance where the material you have selected वो bad ज्यादा आए होंगे आपके हाथ से, हो सकता है. इट्स अ चांस, इट्स बाय चांस, तो इसको सेकंड चांस दिया जाता है. बट इन द सेकंड चांस वी आर स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो पहले वाले डिफेक्ट भी हम लोग काउंट करते हैं. कैसे काउंट करते हैं मैं बताता हूँ आपको. कल मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, मैंने नेट ढूंढा, फिर से मोंटगोमेरी के प्लान की तरफ गया मैं, और अपना महाजन का एक बुक था डिप्लोमा का, वो जो बाद में हम डिग्री को भी यूज करते, उन्होंने एक्सटेंसिव एसक्यूसिटी बुक लिखा है महाजन का. हर जगह मेरा कंफर्म हो गया, जो मैं कल आपको जो बता रहा था वही कंफर्म हो गया कि वो मिक्स किया जाता है लॉट. अभी मैंने मेरा प्लान रीराइट कर दिया, क्योंकि कल इवन बुक्स में भी वो सब ऐसा क्लियरली लिखा नहीं है, मैंने बहुत क्लियरली लिखा, और आपको अभी बताता हूँ क्या है वो. सिंगल सैम्पलिंग, ओके, फॉर एट्रीब्यूट. प्लान्स अलग है, वो अपने सिलेबस में नहीं है. उसके लिए एक प्रोसेस चार्ट्स है हमारे लिए. एट्रीब्यूट और वेरिएबल के लिए
प्रोसेस चार्ट है वो दोनों हमने स्टडी किए। जैसे वेरिएबल के लिए जो प्रोसेस चार्ट है एक्स बार आर चार्ट, वो हमने स्टडी किया। और एट्रीब्यूट डिफेक्टिव के लिए यस और नो के जो रहते हैं उसके लिए मतलब आइदर डिफेक्टिव और एक्सेप्टेड, ये जो इसके लिए जो कंट्रोल चार्ट था वो पी चार्ट था। पी और सी चार्ट भी एक डिफेक्ट के लिए रहता है, वो अपने सिलेबस में दिखाया नहीं है सी चार्ट, इसलिए मैंने लिया नहीं। सी चार्ट भी एक रहता है डिफेक्ट के लिए, बट ओनली पी चार्ट उन्होंने दिखाया है सिलेबस में, तो वो हमने ले लिया। और एट्रीब्यूट के लिए एक सैम्पलिंग, ये भी हमने अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान एज आई टोल्ड जस्ट नाउ, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दे दिया है एन, बड़ा लॉट लिया है उन्होंने 10,000 का लिया, उसमें से एक सैंपल ले लिया, सैंपल साइज n इज इक्वल टू 89। अच्छा 89 क्यों लिया, 90 क्यों नहीं लिया, गॉड नोज, बट इट इज फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक आई हैव टेकन फ्रॉम Montgomery statistical book. C is the acceptance number. Example C is equal to 2. तो 89 में से अगर 0 डिफेक्टिव है, बहुत अच्छा, you can ask him for coffee, that producer कि 0 डिफेक्टिव है, then 1 defective, still you are happy, 2 defective, still you are accepting. If 3 defectives, 3 or more, you reject the entire lot of 10,000. Not only 89, ये 10,000 पूरा जहाज का जहाज वापस भेज दो। 3 कपड़े लिए, किसी को बटन नहीं, किसी की कॉलर पट्टी है, किसी की सिलाई नहीं, किसी को जेब ही नहीं लगाया, ऐसा कुछ डिफेक्टिव पीस है, तो भाई बोलो तुम्हारा जहाज वापस कर दो, नया लॉट भेज दो। तो ये रहा सी एक्सेप्टेंस नंबर। डी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। सो डी लेस देन और इज इक्वल टू सी एक्सेप्ट द लॉट। डी मींस नंबर ऑफ डिफेक्ट जो तो आपको मिला, डी डिफेक्टिव इसलिए डी दिया। सी इज एक्सेप्टेंस नंबर, कोई बुक में ए दिया है एक्सेप्टेंस नंबर ना, ए को ए दिया है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, ये ए भी चलता है सी भी चलता है। ये कॉमन जो है वर्ल्ड के नोटेशंस और इंडिया में चलने वाले मैं आपको बता रहा हूँ पूरे, मतलब हम सब दुनिया के साथ रहेंगे। रेफरेंस यहाँ पे ले लिया लो, www.nano, ये इसमें आप लोग देख सकते हैं। ये आपको मैं भेज ही दिए, तो आप लोग भी ये देख सकते हैं। ये खुद टाइप करना पड़ा, पीडीएफ है ना, वो होने नहीं देता है वो प्रिंट वगैरह, तो ये खुद मुझे टाइप करना पड़ा। अभी अगला मैं डबल सैम्पलिंग प्लान आपको बताने वाला हूँ। डबल सैम्पलिंग प्लान, नहीं ये सिंगल सैम्पलिंग प्लान एक हो गया, इसका मैंने रेफरेंस थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बहुत छोटा था इसलिए। अभी डबल सैम्पलिंग प्लान, हाँ ये डबल सैम्पलिंग प्लान आपको एकदम क्लियरली, DSP डबल सैम्पलिंग प्लान, ए प्रोसीजर, a second sample is required before the lot can be sentenced. इसको सजा सुनाने के पहले लॉट को एक दूसरा लॉट करके हम उसको संधि देते हैं, उसको सेकंड चांस देते हैं। कैसा देते हैं, देखो 1000 का लॉट है या 10,000 का लॉट है, उसमें से पहला सैंपल हमने निकाला, N1 इज इक्वल टू 50। मैं थोड़ा सा आपके साथ अभी फीडबैक लेता हूँ। हाँ बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है ना बराबर? हेलो हेलो, हाँ बराबर है, अभी मेरे को सुनने को नहीं आएगा। हाँ मेरे को ये फीडबैक लेने की आदत है ना। हाँ एक सवाल पूछ रहा है, आप बोलो। क्या यार, ये लोग डायलॉग बंद किया, मतलब खाली मास्टर बोलेगा बच्चे सुनेंगे, क्या है यार, मेरे को फीडबैक की आदत है। यस सर, सो पीपल हैव सेड यस सर, सो आई एम गोइंग अहेड। नहीं तो मैं बड़बड़ाता रहूंगा, अकेला ही आगे जाएगा, पीछे देखो तो कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हाँ, तो मैं अभी एकदम आराम से सिखाता हूँ, क्योंकि बीच में लोगों को पूछने के लिए चांस ही नहीं है यहाँ पे अभी, तो मैं एकदम आराम से जाता हूँ। N1 दैट इज सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, दैट इज 50, मतलब 1000 में से ओके ले ले, सभी चेक किए, एक या दो आया तो हम लोग पूरा वो 1000 10,000 का जो ये है पूरा लॉट एक्सेप्ट करेंगे।
इस सैंपल से 0, 1 और 2 डिफेक्टिव्स अगर आया तो अगर नाउ 4 इज अ रिजेक्शन नंबर सी एक्सेप्टेंस नंबर और रिजेक्शन नंबर में डिफरेंस है अभी यहाँ इमीडिएटली 2 के बाद 3 नहीं लेते हम लोग क्योंकि 3 वाला जो है वो इनडिसीजन जोन रखा है हमने 3 आया तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाले वी कैन एक्सेप्ट आल्सो रिजेक्ट आल्सो ऐसा आर रिजेक्शन नंबर मतलब 4 और 4 से ज्यादा है ना तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड सीधा फेंक देने का गो आउट प्लीज गो टू योर शॉप एंड गिव मी अनदर लॉट मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा माल R1 रिजेक्शन नंबर 4 और 4 से ज्यादा आया रिजेक्ट अभी 3 अगर आ गया तो अगर 3 डिफेक्टिव आ गया 50 में से तो you have to take another sample N2 of 50 इधर बुक्स ने बराबर एक्सप्लेन नहीं किया है कोई भी बुक है उधर ऐसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे मैंने ये सभी बुक्स निकल के बराबर ये क्या अनदर लॉट हमने 50 का ले लिया अब ये 50 है ना इसमें मिक्स किया पहले में क्योंकि देखो दूसरा 50 का लॉट अच्छा भी हो सकता है लेकिन पहले वाला बुरा था उसका क्या है कि नहीं तो दोनों का एवरेज हमको वो आना चाहिए मतलब रियल पिक्चर चाहिए तो हम क्या करते हैं दूसरा लॉट N2 लेते हैं 50 ओके वो पहले में मिक्स करते हैं तो कितना हो गया आपके 100 ये 100 के लिए हम लेक C2 देते हैं एक्सेप्टेंस नंबर सेकंड प्रोसेस के लिए ये C2 नंबर किसके लिए है अभी 100 के लिए यहाँ जम्बलिंग है बुक्स में 100 हो गए ना आपके N1 प्लस N2 तो 100 हो गए तो इसको हम कहेंगे n कहेंगे अभी ये एंटायर हमारा सैंपल है ना टोटल मिक्स करके 100 में से एक C2 होता है अभी यहाँ पे गड़बड़ है यहाँ पे आप इधर 3 और 4 दे सकते हैं 3 और 4 दे सकते हैं लेकिन इधर 3 देने में एक अड़चन क्या है मालूम है क्या अगर आपका एक्सेप्टेंस नंबर 2 है तो वो तो लॉट आप एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके 3 डिफेक्टिव है पहले लॉट में तो वो ये N1 प्लस N2 में 3 ऑलरेडी हो चुके हैं तो आने वाला N2 का जो लॉट है अपना 50 वाला उसमें एक भी डिफेक्टिव आपको नहीं चाहिए तो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन सेकंड लॉट तो कभी कभी लोग थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए 4 भी देते हैं एक्सेप्टेंस नंबर आर यू गेटिंग स्टूडेंट हियर आई वांटेड योर रिप्लाई एक्चुअली लेकिन ये अभी ये लोगों ने हमारे ऊपर वो पाबंदी लगाई मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पहले इधर 3 आ गया पहले सैंपल में तो दूसरे अभी वो दूसरा 50 का ऐड किया उसको कोई भी चांस नहीं अगर एक्सेप्टेंस नंबर हम ग्रुप का 3 रखा तो इसलिए 3 के बजाय 4 रखना थोड़ा ठीक है मतलब देखो वो 50 में एक आधा डिफेक्टिव तो आएगा ही ना एकदम 100% क्लियर होना जरूरी नहीं है मतलब क्योंकि पहले तो आप लोग 2 एक्सेप्ट करने को तैयार है और आने वाले नए लॉट में आप एक को भी चांस नहीं दे रहे तो कभी कभी क्या होता है ये 3 के बजाय ये 4 रखते हैं 4 रखते हैं C2 और यहाँ अभी आपको सेकंड सैंपल लेने के बाद प्लान बंद करना है तो इमीडिएटली आफ्टर 4 यू टेक 5 अगर यहाँ 3 रखते हैं तो ये फिर इधर रिजेक्शन नंबर आपका 4 रहेगा मतलब यहाँ जहां एक्सेप्टेंस नंबर और रिजेक्शन नंबर में एक का ही फर्क है उधर प्लान बंद हो जाता है क्योंकि उसमें जोन ऑफ इनडिसीजन आप लोग रखते ही नहीं है तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि अगर हम एक्सेप्टेंस नंबर 4 रखते हैं और रिजेक्शन नंबर 5 रखते हैं तो 4 या 4 से कम डिफेक्टिव N1 प्लस N2 में तो 3 तो देखो 3 तो आने ही है क्यों 3 आने हैं क्योंकि पहले में 3 आए इसलिए तो हमने नया सैंपल ले लिया और वो पहले वाला लॉट तो अभी हमने उसमें मिक्स ही कर दिया ना तो पहले वाला लॉट उसमें मिक्स कर दिया इसमें दूसरे लॉट में तो उसमें वो पहले 3 डिफेक्टिव तो है ही अभी आने वाले N2 में हमारा एक ही हमको अभी चांस है तो फिर हमको उसमें अगर 4 या 4 से कम हम एक्सेप्ट कर सकते 4 से थोड़ा भी आगे गया तो रिजेक्ट कर सकते अगर 3 ही एक्सेप्टेंस नंबर रखा तो 4 को भी रिजेक्ट करेंगे फिर मतलब इट डिपेंड कि हाउ मच स्ट्रिक्ट यू वांट उसको कम से कम एक डिफेक्टिव का तो चांस देना चाहिए ना नए वाले 50 को इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा 4 50 को तुम 2 दे रहे हो तो फिर 100 को वो दे दो ना फिर वो मतलब 4 दे दो ऐसा क्योंकि पहले 3 आया है पहले लॉट में
तो उसको नए वाले में अगर एक डिफेक्टिव आया तो भी चलवा लो ना, मतलब एवरेज करके। तो ये 4 हम ले लें, मतलब 100 को 4 तो 50 को 2 आ जाता है ना, तो ये 4 हम लोग रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है तो फिर आप 3 रख सकते हो। नाउ हियर दिस हाउ मच टू कीप दिस सैम्पलिंग प्लान ऑन अदर स्ट्रिक्ट, ये आपके पॉलिसी पे, स्ट्रेटेजी पे, माल की कीमत पे, सप्लाई पे, डिमांड पे, मैन्युफैक्चरर और आपके बीच में जो निगोशिएशन होता है उस पर डिपेंड है। सो यहाँ पे प्लान बंद करना है अपने को, डबल सैम्पलिंग प्लान करना है, सेकंड स्टेज को प्लान बंद करना है। तो C2 और R2 में आप लोग एक का डिफरेंस रखोगे। आपको मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान है, मतलब और आगे जाना है और एक सैंपल 50 का लेना है वगैरह, ऐसा अगर करना है तो आप C2 और R2 में फिर एक का डिफरेंस नहीं रखेंगे। समझो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे हम लोग। तो 5 अगर आया तो हम लोग और एक सैंपल लेंगे, उसको फिर एक्सेप्टेंस नंबर और रिजेक्शन नंबर लेंगे। ऐसा ये चलता रहेगा अगर मल्टीपल सैंपलिंग है तो डबल सैंपलिंग तो सैंपलिंग प्लान डिपेंड्स various single sampling, double sampling, multiple sampling. Now I will take one feedback from you. जो डबल सैम्पलिंग प्लान था, ये यहाँ पे लिखा ना हम लोग, ये देखो ये 50 ये दो, तो ये इसको ही बाद में फॉर्मूला के इसमें हमने यहाँ पे डाल दिया है। देखो, so inspect a random sample of N1 from the lot. ये मॉन्टगोमेरी के लैंग्वेज में, वो इंटरनेशनल ऑथर है ना, वो अपना टीचर मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिशियन का, अमेरिका में पढ़ा था, कौन सा यूनिवर्सिटी मालूम नहीं, अपने बहुत से बच्चे पढ़े उसके अंदर। इंस्पेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ N1 50 फ्रॉम द लॉट, D1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफेक्ट। अगर D1 C1 से कम या इक्वल है, एक्सेप्ट द लॉट, मतलब 0 1 2 निकले तो। मैं अपने लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा सा, मतलब बच्चों के लिए और अच्छा मैथमेटिक्स भी यूज किया। इफ D1, कल थोड़ा सा ये चेंज किया, इधर उन्होंने C2 वगैरह लिखा था, जंबलिंग हो रहा था, तो C2 एंटायर लॉट के लिए। इफ D1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R1, रिजेक्ट द लॉट, 4 और मोर। अगर 3 है तो इफ C1 is less than D1 and D1 less than R1, that is 3. इधर नहीं, अभी वो that is 3, ऐसा इधर लिखना चाहिए, that is 3. Then we can take new sample N2 is equal to 50. Mix into first N1. Now N1 plus N2 is a N, that is 100, is new sample size. For that we fix new acceptance number C2, which is 3. Okay. So D2, number of observed defectives in entire samples, N is equal to 100. If it is, if that D2 is less than or equal to C2, accept the lot, 0, 1, 2, 3. If D2 is greater than 3, reject the lot. That is, if 4 or more defect is there, then reject the lot. तो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल स्टेटमेंट लिखा है, here C2 can be more than 3 in case party decides not to be very strict over second sample, because already if 3 samples of first lot are defective, second lot must have 0 defective to have D2 less than C2. So C2 may be kept 4 and R2 is equal to 5 in few cases. मतलब थोड़ा उनको ये देने के लिए, थोड़ी सी सूट देने के लिए, रियायत देने के लिए, या क्या कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा उनको मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा फ्री रखेंगे उनको, एक आधा मिस्टेक होने दो। क्योंकि अगर पहले ही लॉट में हमारा 50 में से 3 डिफेक्टिव है तो दूसरे में एक भी नहीं आना चाहिए, तब हम एक्सेप्ट करेंगे ये, और उनके ऊपर थोड़ा सा जाती होगी, इसलिए उनको एक चांस दे दिया। एक डिफेक्टिव है तुम्हारा तो चलेगा, तो 4 कभी कभी एक्सेप्टेंस नंबर रखते हैं और 5 रिजेक्शन नंबर रखते हैं। सो दैट डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम। सो दैट इज डबल सैम्पलिंग प्लान। मतलब एक ही सैंपल पे तुम्हारा लॉट का भविष्य नहीं तय करते हुए 2 लॉट लेके दोनों मिक्स करके हम लोग डिसाइड करते हैं, ऐसा। तो ये एक ये है हमारा, तो हम अभी जाएंगे ऑपरेटिंग कर्व। हाँ, जस्ट अ मिनट। आप वैसे मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान भी है, लाइक डबल सैम्पलिंग प्लान टिल द लॉट्स एंड, ऐसा भी चलता रहता है। एक सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान है, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, सैंपल टेकन एट रेगुलर इंटरवल, ये भी है।
लेकिन अपने सिलेबस में सिंगल और डबल ही मेंशन किए, तो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान और सीक्वेंस सैम्पलिंग प्लान क्या है वो मैंने खाली आपको बताया। हाँ, सो दैट इज देयर। हाँ, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ percentage probability of acceptance on y-axis, and you have lot quality lot quality on x-axis, that is percentage defective on x-axis. मतलब 2% डिफेक्टिव, 4% डिफेक्टिव, 6% डिफेक्टिव, 8% डिफेक्टिव, ऐसा तुम्हारा ये है। और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, that is OCC, is a probability curve for a sampling plan that shows the probability of accepting the lot with various lot quality. मतलब ये क्या बोलता है कि अभी ये ऐसा रिटार्डिंग कैसा है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कि 2% डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कितनी होनी चाहिए? 90% होनी चाहिए इस कर्व के हिसाब से। और 10% ऐसा चांस है, 10% यानी 0.1 ऐसा चांस है कि दैट गुड क्वालिटी, 0.02 बोले तो गुड क्वालिटी है ना, दैट विल आल्सो बी रिजेक्टेड, ऐसा भी एक चांस है। हाँ, मतलब ये सैम्पलिंग में ऐसा चांस है कि एकदम अच्छे सब आपके इसमें आ जाएंगे लॉट में और रिजेक्ट वो हम वापस करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो 100% अगर इंस्पेक्शन रहेगा तो वो कर्व कैसा रहेगा मालूम है क्या? अगर 2% हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है, 2% यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी, तो आपके 2% डिफेक्टिव से कम वाले सभी एक्सेप्ट होने चाहिए। तो वो केस में क्लियर कट बाइफर्फिकेशन कैसा रहेगा मालूम है? यहाँ से ऐसा कर्व सीधा आएगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ से एकदम वर्टिकल लाइन आएगी परफेक्ट तक, वो कर्व नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि वो हो जाएगा ऐसा वर्टिकल आके इधर ही खत्म होगा, ऐसा वर्टिकल लाइन। आप समझ रहे हैं ना? मतलब क्लियर कट बाइफर्फिकेशन बिटवीन गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, क्योंकि गुड क्वालिटी एक्सेप्ट किया हमने 2% और उससे ज्यादा हमने एक्सेप्ट किया एज अ मतलब रिजेक्ट किया एज अ बैड क्वालिटी। तो लेकिन सैम्पलिंग में क्या होता है कि कभी कभी आपके साथ अच्छा भी आ जाता है, बुरा भी आ जाता है। तो ये कर्व ऐसा होना चाहिए डिजाइन करते टाइम, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कि इसके हिसाब से अपना प्लान डिसाइड होता है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड आइटम शुड बी 90%। ये देखो यहाँ पे ये दिखा है 2% यानी 50 में से 2, यानी हमने 2 या 100 में से 2 2% बोले तो 100 का लॉट यहाँ पे कंसिडर किया हमने, और उसमें से 2 जो है वो एक्सेप्टेंस नंबर डिसाइड किया है। तो 0, 1, 2 अगर आ गया तो आपका एक्सेप्टेंस है ना। तो लेकिन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा है कि जहाँ पे 90% चांस है आपका कि वो एक्सेप्ट हो जाए और 10% चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाए। अभी ये दिस पर्टिकुलर इज नोन एज प्रोड्यूसर्स रिस्क। अभी कंज्यूमर रिस्क एक बोलता हूँ आपको। ये कर्व ऐसे एकदम नीचे नहीं आएगा, ऐसा आके ऐसा आगे चलता जाएगा, यानी 0.1 यानी 10% डिफेक्ट अगर है तो 10% डिफेक्ट यानी बहुत बुरी चीज है एक्चुअली। 10%, 11% डिफेक्ट है तो, लेकिन ये ओसी कर्व में ऐसा भी चांस है कस्टमर को, कंज्यूमर रिस्क बोलते हैं उसको, कि 10% डिफेक्ट है फिर भी आपका एक 10% चांस है कि वो एक्सेप्ट किया। मतलब आप एकदम डिफेक्टिव पार्ट है जिसमें 10 डिफेक्ट्स है, 10% डिफेक्ट है, वो भी एक्सेप्ट होने का 10% चांस है। देखो मतलब अच्छा क्वालिटी एक्सेप्ट होने का चांस 90% है और बुरा क्वालिटी एक्सेप्ट होने का चांस कितना परसेंट है? 10% है। तो दिस पोर्शन इज नोन एज कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क क्या बोलता है कि बैड क्वालिटी इज आल्सो एक्सेप्टेड एंड दैट चांस इज 10%। और प्रोड्यूसर रिस्क क्या है? गुड क्वालिटी में भी रिजेक्टेड, यानी वो भी 10% है। यानी दोनों को 10% पे एग्री करना पड़ता है, तभी तो वो सैंपलिंग हो जाएगा ना। अदरवाइज वो हर एक पार्ट आपको चेक करना पड़ेगा 100% इंस्पेक्शन, वो टाइम ये कर्व नहीं आएगा, ऐसा क्लियर कट वर्टिकल लाइन आएगा, ऐसा बाइफर्फिकेशन बिटवीन गुड आइटम्स एंड बैड आइटम्स।
आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? फीडबैक, मैं अभी फिर यार ये एक नया ही चक्कर हो गया ये फीडबैक लेने का बच्चों। मेरे को अभी वो आपको, हाँ, आर यू गेटिंग, मेरे को इधर जवाब दो, आर यू गेटिंग? हाँ हाँ हाँ, टाइप करो कोई भी बच्चों। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये कंसेप्ट आपको समझा क्या अभी जो मैंने बताया? सैम्पलिंग में देयर इज अ चांस दैट 10% चांस कि अच्छा आइटम भी रिजेक्ट हो जाए, ये प्रोड्यूसर का रिस्क है। और कंज्यूमर का रिस्क क्या है कि बैड क्वालिटी आल्सो विल बी एक्सेप्टेड, ये कंज्यूमर रिस्क है। ये मैं आगे आपको अभी बताता है। somebody said that yes sir it means really it is understood। अभी ये कंडीशन जो है, जो बच्चों का डायरेक्ट क्वेश्चन सुनने को नहीं मिल रहा है, ये केस में इतना परफेक्टली सिखाना पड़ेगा अभी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम को क्या हो गया, सब अच्छा होते होते एकदम एक एक सटक जाता है लोगों का, बीच में ही सटक जाता है लोगों का। हाँ ठीक है, ये देखो, तो ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं इसको। तो ये कर्व कैसा निकालने का वगैरह मैं बाद में बताता हूँ आपको, इतना डिटेल नहीं है अपने को सिलेबस में, खाली ओसी कर्व क्या होता है एंड व्हाट आर दोस टर्म्स, इतना ही है। हा? तो ये देखो, ये है most consumers understand that 100% inspection is impractical and are generally willing to accept that a certain level of defectives will be produced, yeah, and will be accepted, दोनों साइड से, मतलब will be produced। ये तो है। The acceptable quality level AQL is a percentage level of defect at which consumer is willing to accept as a lot as good acceptable quality level। वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल कौन सा है अपना? 2%। पिछले कर्व में जो देखा ना हमने, ये कहा गया यार वो, हाँ 2%, that is AQL, you can say this is known as AQL, and this is LTPD, lot tolerance percentage defective। वो बाद में, हाँ, lot tolerance percentage defective is the upper limit of the percentage of defective that a customer is willing to accept। ओके, ऐसा मतलब 10% चांस है ना एलटीपीडी भी एक्सेप्ट होने का, तो बुरा से बुरा कितना डिफेक्टिव, लेकिन उसका परसेंटेज कम होना चाहिए। सो एलटीपीडी इज, ये पहले वाला फिगर में जाएंगे, दिस इज एलटीपीडी, दैट इज 10% डिफेक्ट, 10% डिफेक्टिव, दैट इज एलटीपीडी, लॉट टॉलरेंस, मतलब अपर लिमिट ऑफ डिफेक्ट, मतलब उससे ज्यादा हर हालत में नहीं आना चाहिए। तो वो कर्व बाद में रिटायर्ड हो रहा है, मतलब वो वैसा नहीं आना चाहिए। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसा आप डिसाइड करो कि इससे ज्यादा डिफेक्ट आना ही नहीं चाहिए आपके इसमें, ऐसा। तो मतलब ये 10% ये जो है वो एलटीपीडी है, और AQL एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल इज % अच्छा माना गया है, 2% और लेस अच्छा माना गया है। आप बोलेंगे 0 और 1, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो कॉफी को पे बुलाओ प्रोड्यूसर को, फिर वो तो ऐसा अगर आए तो। तो ये 2% इज AQL एंड 10% इज LTPD। तो ये LTPD क्या है, AQL क्या है, ये डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, बहुत यूनिवर्सिटी के बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। कस्टमर वांट लॉट्स विद क्वालिटी बेटर देन और इक्वल टू AQL but are willing to live with some lots with quality as poor as LTPD but prefer not to accept lots with quality level worse than LTPD। आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे, हर हालत में LTPD से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए। LTPD एक समझ सकते हैं कि कुछ हद तक एक्सेप्ट होगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कम है, 10% है। और AQL अच्छा है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 90% है। तो ऐसा ये ओसी कर्व है, दैट इज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इसमें ओसी कर्व अगर आपने देखा तो ये जो पोर्शन है पहले वाला 4% तक, तो ये वेरी गुड है। बाद में ये जो है ये इट इज ओके बट नॉट ग्रेट, ये बीच में मिडियम, और ये बैड है। तो बैड में से एक हमने यहाँ पे ले लिया,
10% तक हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इधर का तो भाई फेंक दो, तुम खुद वेयर करो बोलेंगे मालिक को। ऐसा हम हमको नहीं चाहिए। बाद में हो सकता है ऐसा बार बार अगर आने लगे तो उसको हम लोग चेंज ही करेंगे। ऐसा ही इंस्टेड ऑफ गुड एंड बैड वी विल डिफाइन रियली गुड रियली बैड ओके बट नॉट बैड। अगर आपको एकदम गुड और बैड का डिफरेंशिएट करना है तो आपका ओसी कर्व कैसा आएगा, आइडियल ओसी कर्व ऐसा वर्टिकल आएगा। वो भी आगे कहीं तो भी दिया है हमने, मैं दिखाता हूँ आपको। somewhere it is shown, I have shown somewhere ideal OC curve। कहीं तो भी ड्रॉप ऐड किया नहीं। देखो सब परफेक्ट ओसी कर्व। अगर तुम्हारा 100% इंस्पेक्शन तुमने किया तो बैड ये एक्सेप्ट है, 100% एक्सेप्टेंस गुड आइटम। 3% अगर हमने अच्छा क्वालिटी एक्सेप्ट किया, 3% अगर हमने अच्छा क्वालिटी है वो एज्यूम किया तो 0 1 2 3 ये परसेंट है, ये 100% एक्सेप्ट होंगे। और उससे ज्यादा 3% से ज्यादा है तो ये रिजेक्ट होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम सैम्पलिंग इंस्पेक्शन छोड़ के 100% इंस्पेक्शन करेंगे। लेकिन एक्चुअली 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं, तो ये डिपार्ट होता जा रहा है। देखो डिपार्ट होता जा रहा है, ये ऐसा कर्व आएगा। अभी इसमें वो कर्व कैसा डिसाइड होता है उसका, ये कर्व जैसे ऐसा आएगा इसको क्लोज, ये ऊपर के ये लाइन को ऐसा क्लोज जब आएगा तो ये ज्यादा एक्सेप्ट मतलब ये होता है, मतलब इनको जो बाइफरफिकेशन होता है गुड और बैड में, तो वो कैसा डिसाइड होगा ये भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब what are various factors which affect the OC curve that we are going to see। just a minute, ये हम लोग कहाँ आए। हाँ ये OC कर्व देखो, इसके बाद यही है ना, एक मिनट एंटर करता हूँ। हाँ यही आ गया, ये OC कर्व देखो। तो मैन्युफैक्चरर यानी प्रोड्यूसर्स रिस्क है ये और उसको हमने थोड़ा सा ऊपर ऐसा ले लिया, मतलब 95% एक्सेप्टेंस किया। अच्छा आइटम जो 2% है ना उसका 95% एक्सेप्टेंस किया, तो आपका कर्व है ना एकदम ऐसा फ्लैट होते हुए, मतलब इसको पैरेलल ऊपर इसको एकदम क्लोज किया हमने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है कि ज्यादा सैंपल लेने पड़ेंगे, सैंपल साइज आपका बढ़ाना पड़ेगा। यानी सैंपल साइज ज्यादा लेना यानी हम क्या कर रहे हैं, जो 100% इंस्पेक्शन और एकदम कम काम है उसके बीच में जा रहे हैं ना, सैंपल साइज ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, मतलब एकदम क्लोज जा रहे हैं ना, मतलब जैसे 100% इंस्पेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ज्यादा सैंपल साइज लेने, यानी इसलिए वो कर्व ऐसा थोड़ा सा फ्लैटन होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड क्वालिटी इंक्रीज होता है और बैड क्वालिटी आने का लॉट में ये कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है। तो प्रोड्यूसर रिस्क आपका कम होता है। कंज्यूमर ये ऐसा वर्टिकल रखा हमने, इसको अगर और यहाँ से ऐसा थोड़ा वर्टिकल लेके आए नीचे और यहाँ पे 0.5 किया तो भी चलता है। आप बोलेंगे ये सब कैसा डिसाइड होता है, ये 0.5 0.95 ऐसे ही आप हाथ से निकालोगे क्या करो? ऐसा नहीं है, वो कैसा कर्व निकलने का उसको भी कैलकुलेशन है। उसमें दो कैलकुलेशन है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम दोनों के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। तो ये इसके ऊपर है ना, इसके के ऊपर हम प्रॉब्लम्स वगैरह पहले आते थे। जब इसका 100 मार्क का ये जब था ना, ये पूरा MQC पहले जैसे अभी भी है, लेकिन उतना हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इसमें से न्यूमेरिकल वगैरह।
क्योंकि वो TQM वगैरह भी एंट्री किया है ना इसमें। तो ये एक्चुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इसके फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो ये है, फिर यानी ये AQL एवरेज ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, सो इट इज एक्चुअली 5% here. Acceptable quality defective and probably that acceptable that quality level that is 5%. Okay, so 2% quality होने का कितना चांस है? मैं प्रोड्यूसर रिस्क कितना है? 5%. This is acceptable quality level. कौन सा? 2% is AQL, acceptable quality level. This bad quality, this is 5%. It is said as LTPD, and this particular portion, this is 5%, is called as producer risk or manufacturer risk. And here this portion, 10% it is kept in this OC curve. This is known as consumer risk. You can see here 0.10. अर्लियर एग्जाम्पल जो था हमारा इसके पहले वाला, जस्ट अ मिनट, वो कहाँ गया यार, जस्ट अ मिनट, उसमें दोनों 10% था। हाँ ये देखो, अभी यहाँ पे इसके पहले वाला, इसके भी पहले हमने एक लिया था ना एक, हाँ यहाँ पे कितना था? प्रोड्यूसर रिस्क 10% था, 0.9 था। अभी जो नया कर्व तो उसमें और ये फ्लैट किया ना ऐसा कर्व, तो वो कितना हो गया? 0.95 हो गया। मतलब प्रोड्यूसर रिस्क उन्होंने कम किया और ये 10% ही रखा। अगर ये ऐसा होके और ऐसा क्रॉस करके यहाँ से नीचे जाता है तो और मतलब वर्टिकल को क्लोज आता है ना वो, तो उसमें आपका अच्छा क्वालिटी एक्सेप्ट होने का चांस बढ़ेगा, तो 90 का 95 हो जाएगा और बैड क्वालिटी एक्सेप्ट करने का भी 10 का 5% हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सैंपल ज्यादा लेना पड़ेगा, ऐसा करके आपको ये कर्व ऐसा लाना पड़ेगा। मतलब जितना आप वर्टिकल कर्व करोगे उसको उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब यू आर बाइफरफिकेटिंग बिटवीन गुड एंड बैड आइटम, लेकिन उसके लिए आपको सैंपल ज्यादा लेने पड़ेंगे, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। मतलब कुछ पाना है तो कुछ खोना है। सो ये रहा आपका आज का सेशन, हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया। योर डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड टुमारो आल्सो। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप टुडे। हाँ, तो मेरे को बच्चों आप लोग बोलो, आप किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लिख के दे दो, मैं वेट कर रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir.